seventh Sunday after Pentecost. The theme of our worship this morning is God Himself commissions those who do His work. Father Almighty, we thank you for this beautiful time that we can worship Thee. And Lord, as we are passing through these trying times when COVID-19 is spreading everywhere, you, O Lord, protect the whole church. And Jesus, we pray Thee, protect the whole humankind. Jesus, may your touch of healing be upon all those who are suffering. Very specifically, we pray for those who are suffering in our church. Jesus, touch them with your healing hand. Restore them to health and strength. Sprinkle thy blood upon them and touch them with your healing hand. For we ask it all in the name of your Son, our Savior Jesus Christ. आमेन। आइए हम सब अपने जोरों पर खड़े होकर गाएंगे। Tasted of freedom, I can go where He's leading. No shackles can hold me no more. I have learned of life's lessons, and I stand in His presence, and there I can sing He is Lord. Keep silent, ye mountains, ye fields and ye fountains. This is the time I must sing. It's a time to sing praises to the Rock of the Ages. This is the time I must sing. There are days filled with sorrow and plans for tomorrow, but this is the time I must sing. And I know there's a reason why in this off season God gives me a song I shall sing. Keep silent, ye mountains, ye fields and ye mountains. This is the time I must sing. It's a time to sing praises to the Rock of the Ages. This is the time I must sing. Tasted of freedom, I can go where He's leading. No shackles can hold me no more. I have learned of life's lessons, and I stand in His presence, and there I can sing He is Lord. Keep silent, ye mountains, ye fields and ye fountains. This is the time I must sing. It's a time to sing praises to the Rock of the Ages. This is the time I must sing. There are days filled with sorrow and plans for tomorrow, but this is the time I must sing. And I know there's a reason why in this off season God gives me a song I shall sing. Keep silent, ye mountains, ye fields and ye mountains. This is the time I must sing. It's a time to sing praises to the Rock of the Ages. This is the time I must sing. The Old Testament reading is found written in the book of Numbers, chapter 27, verses 12 to 23, and Miss Jennifer will lead us in the reading of the text.
Numbers 27:12 to 23. Numbers 27:12 to 23. The Lord said to Moses, "Climb this mountain of the Abraham range and look on the land I have given to the people of Israel. After you have seen it, you will be gathered to your fathers as Aaron your brother was. For you both rebelled against my command in the desert of Zin, when the community challenged me, when I commanded you to proclaim my holiness before their eyes by means of the water." Moses said to the Lord, "May the Lord, God of the Spirit that gives life to all living creature, appoints a leader for this community, to be at their head as they go out and come in, who shall lead them out and bring them in, so that the community of the Lord may not be like the sheep without a shepherd." The Lord said to Moses, "Take Joshua, son of Nun, a man in whom the Spirit dwells, and lay your hands on him. Then make him stand before Eleazar the priest and the whole community and commission him in their presence. Give him a share of your authority, so that the whole community of the people of Israel may obey him. He must appear before Eleazar the priest, who shall consult the Lord for him and obtain decisions by means of the Urim. His word will direct Joshua and all the people of Israel, the whole community, in all their affairs." Moses did as the Lord had commanded. He took Joshua and presented him before Eleazar the priest and the whole community. He laid his hand on him and authorized him as the Lord had directed through Moses. Praise the Lord. आज का दूसरा पाठ किया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 5 से 16 आयत, और मिसेस चित्रा इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आज का पाठ जो लिया गया है नए नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 5 से 16 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 5 से 16 पद। इन बारहाओं को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। न्यू टेस्टमेंट की रीडिंग ली गई है पहला कुरिन्थियों, उसका 9वां अध्याय, उसकी 3 से 14 आयत, और मिस्टर एरन पॉल जेकब इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। 1 Corinthians chapter 9 verses 3 to 14. When people criticize me, this is how I defend myself. Haven't I the right to be given food and drink for my work?
Haven't I the right to follow the example of the other apostles and the Lord's brothers and Peter by taking a Christian wife with me on my travels? Or are Barnabas and I the only ones who have to work for our living? What soldier ever has to pay his own expenses in the army? What farmer does not eat the grapes from his own vineyard? What shepherd does not use the milk from his own sheep? I don't have to limit myself to these everyday examples because the law says the same thing. We read in the law of Moses, do not muzzle an ox when you are using it to thresh corn. Now, is God concerned about oxen? Didn't he really mean us when he said that? Of course, that was written for us. The man who plows and the man who reaps should do their work in the hope of getting a share of the crop. We have sown spiritual seed among you. Is it too much if we reap material benefits from you? If others have the right to expect this from you, haven't we an even greater right? But we haven't made use of this right. Instead, we have endured everything in order not to put any obstacle in the way of the good news about Christ. Surely you know that the men who work in the temple get their food from the temple, and that those who offer the sacrifices on the altar get a share of the sacrifices. In the same way, the Lord has ordered that those who preach the gospel should get their living from it. This is the word of the Lord. इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 15 से 27 आयत और मिसेस नीलम सेन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। अभी मैं पढ़ूंगी नए नियम का पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 15 से 27 जो कि इस प्रकार लिखा गया है। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ भी घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि मैं अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंट कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी पूरी रीति से काम में न लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं, औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 9, verse 35 to chapter 10, verse 4. And Mr. Royden Simon
will lead us in the reading of the text. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Matthew, the 9th chapter, beginning from verse 35 through the 10th chapter up to verse 4. Matthew chapter 9, verse 35. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out and to heal every disease and every affliction. The names of the 12 apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed him. This is the gospel of Christ. Let us bow down our heads in prayer. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. If you look at the Old Testament reading, वहाँ हम देखते हैं कि मूसा को खुदावंद कहता है कि आए मूसा, तू अब आगे नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ प्रॉमिस्ड लैंड को एक पहाड़ पर से देखेगा और उसके आगे तू नहीं जाएगा, क्योंकि तूने एक जगह पर जहाँ उसने रॉक में से पानी निकाला था, वहां पर तूने मुझे वो आदर नहीं दिया, और इसलिए तू जो है आगे लीड नहीं करेगा। और मूसा को पता था कि अब he will not continue any further and he will go to the Lord, back to God's presence. इसलिए मूसा ने कहा, आए खुदावंद ऐसा कर कि मेरे बाद एक सक्सेसर जो कि मेरा है उसको तू नियुक्त कर, ताकि वो तेरे लोगों को लीड करे। और these your people are not like sheep without a shepherd, यानी ये बिन चरवाह की भेड़ें ना हो जाए। और खुदावंद ने कहा, तू जोशुआ को बुला और तू उसको अपॉइंट कर, तू उसके लिए प्रार्थना कर, और मैं जोशुआ को अगुवाई दिया करूंगा, मैं उसके साथ साथ चलूंगा। और तू जो प्रीस्ट है, एरन का जो बेटा है एलिएजर, उसको भी बुला, और वो जो है वो मेरी कमांड को जोशुआ को बताया करेगा, और जोशुआ उसके मुताबिक चलेगा, and he will lead his people on to the promised land. हम देखते हैं खुदावंद commissions. The theme of our worship this morning was the Lord Himself commissions His servants. खुदावंद ने अपने लोगों को चुना है, वो उन्हें नियुक्त करता है, वो उन्हें अनॉइंट करता है और उन्हें लिए चलता है। अगर हम आज की गॉस्पेल रीडिंग को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो वहाँ यूँ लिखा है कि यीशु चारों तरफ अपने लोगों की अगुवाई करता चला गया, वो उनके सिनेगॉग्स में टीच करता गया और सबको एक गुड न्यूज़ का सरमन देता गया कि लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। और फिर उसने जब लोगों की भीड़ को अपने पीछे आते देखा, लोगों को देखा, उनकी भीड़ को देखा, तो उसने अपने दिल में उसे बहुत ही filled with pity for them, क्योंकि वो ऐसे हेल्पलेस थे, they were sheep without a shepherd। खुदावंद अपने लोगों को चाहता है कि वो भेड़ें बगैर चरवाहे की ना हो, यानी चरवाहा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भेड़ें अपने आप से भटक जाती हैं। और सच में चरवाहा का काम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि वो उनको पथ पर रखता है और वो उनको गलत जाने नहीं देता, नहीं तो हर एक वे
भेड़ अपना रास्ता खोजने लगती है। ये एक इंसानी नेचर है, फितरत है। और इसलिए खुदावंद ने खुद कहा, अगर हम आज का जो गॉस्पेल रीडिंग मत्ती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां यीशु क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सो जीसस सेड टू हिज डिसाइपल्स, तब उसने अपने चेलों से कहा, द हार्वेस्ट इज लार्ज बट देयर आर फ्यू वर्कर्स टू गैदर इट इन। Pray to the owner of the harvest that he will send out workers to gather in his harvest. यानी परमेश्वर कह रहा है कि लेबरर्स थोड़े हैं, हार्वेस्ट तो बहुत बड़ा है मगर लेबरर्स थोड़े हैं। यानी प्रचारक थोड़े हैं, शेपर्ड्स थोड़े हैं, और शेपर्ड्स का होना जरूरी है क्योंकि मेरी भेड़ों को शेपर्ड्स मिसलीड नहीं होने देंगे। यानी परमेश्वर अपनी भेड़ों को बगैर चरवाई के नहीं चाहता। और फिर उसने लोगों 12 चेलों को चुना, हम देखते हैं 12 के नाम बताए गए हैं। और फिर उसने कहा, जाओ मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ, जाओ सारी शहरों में नगरों में जाके मनादी कर दो कि परमेश्वर में मदद है, यीशु में बचाव है, सल्वेशन है, प्रोटेक्शन है, और तुम जाके सारी तरफ मनादी कर दो। और फिर उसने कहा, तुम अपनी कोई भी चिंता मत करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी चिंता मेरी भेड़ें कर लेंगी। यानी उसने कहा, ना तो तुम बटुआ लो, ना तुम किसी भी और चीज को लो, ना तुम चोरी लो, ना तुम कोई भी चीज मत लो, तुम्हारी जरूरतों को मेरी भेड़ें तुम्हारे लिए पूरा कर देंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीस थिंग्स। तो खुदावंद अपने लोगों को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए शेपर्ड्स को भेजा है, और शेपर्ड्स की केयर करना भेड़ों की एक ड्यूटी है। दिस इज द गॉड्स कमांड। परमेश्वर यीशु का वचन है, और आसमान जमीन टल जाएगा मगर उसका वचन कभी न टलेगा। तो आज परमेश्वर जब अपने शेपर्ड्स को कमीशन किया तो उसने कहा, ये लोगों का जो सारी प्रबंध है वो भेड़ें करेगी। तो उस प्रबंध को करने के लिए परमेश्वर ने, अगर आप लेविटिकस की पुस्तक को देखें, लय व्यवस्था उसके पहले 7 चैप्टर्स अगर आप देखते हैं तो वहां क्लियरली लिखा है कि मैंने अपने पोषण में से, यानी जो मेरी भेड़ें कमाती हैं, जो मेरे लोग कमाते हैं, उसमें से 10वां अंश खुदा का है। और उस 10वें अंश में से मैंने जो है, जो फैट पोषण है, यानी मतलब चर्बी है, जो ब्लड है, जो ऐसी चीजें हैं जो कि उपयोग में ज्यादा अच्छी नहीं है, वो सब मैंने खुद ले ली, और मैंने अपने वर्कर्स को, मैंने अपने कमीशन एजेंट्स को अपने पोषण में से दिया है। अगर हम न्याय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो थीम है वो क्या है? द लॉर्ड हिमसेल्फ कमिशन्स। खुदावंद अपने शेपर्ड्स को खुद हिमसेल्फ ही कमीशन दें। तो जब भी आप किसी चीज को कमीशन करते हैं तो आप जो हैं उसकी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। यानी खुदावंद ने अपने लोगों के लिए शेपर्ड्स को चुन लिया ताकि वो उसकी भेड़ों की अगुवाई करें। तो अगर हम न्याय व्यवस्था की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें, पहली, दूसरी, तीसरी अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि जो भी ऑफरिंग आती थी उसमें से कुछ पोर्शन खुदा को अर्पण कर दिया जाता था, एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रेन ऑफरिंग बिलोंग टू द प्रीस्ट। इट इज वेरी होली सिंस इट इज टेकन फ्रॉम फूड ऑफर्ड टू द लॉर्ड। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली खुदा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जो कि हमने या तो पढ़े नहीं है, या हो सकता है कि आज ही का दिन चुना है खुदा ने कि इन सब के ऊपर हम ड्वेल करें। The priest will take part of it as a token and he will burn it on the altar. कि जो ऑफरिंग आई है उसमें से थोड़े से पोर्शन को निकाल के ऑल्टर के ऊपर वो जला देगा। The smell of the food offering will be pleasing to the Lord. जब वो थोड़ा सा पोर्शन उसमें से जो है वो जला देगा, and the rest of the offering belongs to the priest, and it is very holy since it is taken from the food offered to the Lord. खुदावंद कह रहा है, मैंने जो पोषण मेरा था, वो जो 10वां अंश मेरा था, उसमें से मैंने अपने पादी गणों को दे दिया है।
यानी मतलब परमेश्वर का वचन वेरी क्लियरली लेविटिकस की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसकी अगर हम 12वीं आयत की बी पार्ट को पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, द प्रीस्ट शैल थ्रो इट्स ब्लड अगेंस्ट ऑल द फोर साइड्स ऑफ द ऑल्टर एंड प्रेजेंट द फॉलोइंग पार्ट्स एज फूड ऑफरिंग टू द लॉर्ड। अब कौन कौन से पार्ट्स वो प्रीस्ट जो है वो ऑल्टर के ऊपर परमेश्वर को ऑफर कर देगा, यानी मतलब एक पूरा भर रहा है उसमें से कौन कौन से पोर्शंस को वो ऑफर करेगा। वहां लिखा है द लेट मी रीड इट टू यू, ऑल द फैट्स फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदरूनी पार्ट्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो फैट्स जमा है उनको ऑल्टर पे ऑफर कर देगा। द किडनी एंड द फैट्स फ्रॉम देम एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द लिवर, ये सब प्रीस्ट जो है वो जला देगा। एंड द प्रीस्ट शैल बर्न ऑल दिस बट द रेस्ट ऑफ द ऑफरिंग विल बिलोंग टू द प्रीस्ट एंड हिज सन्स। खुदावंद अपने लोगों को जो कमीशन कर रहा है तो उसने कहा है कि तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा कर रहा हूं, तो मैंने जो 10वां अंश मेरा आया है उसमें से मैंने थोड़ा सा पोर्शन, और वो पोर्शन जो खुदा ने अपने लिए चुना वो भी क्या था, ब्लड, जो कि हम खा नहीं सकते, जो फैट्स जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, और ऐसे पार्ट्स इंटरनल के पार्ट्स जो थे वो सब तो खुदावंद ने खुद ऑफर करवा लिए, और rest of it belongs to the commission agents. So this is all written in the Bible, but we have not thus read like this. हमको पढ़ना है और हो सकता है आज ही क्योंकि आज हमारा थीम ऐसा है कि the Lord commissions His servants to take care. पौलुस रसूल भी very clearly यही बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा विनियर्ड है, कौन सा ऐसा गार्डनर है जो कि अंगूर उगाए और उसमें से अंगूर ना खाए, और अंगूर उगा रहा है, अंगूर उग रहे हैं और फिर वो उसके गार्डन में अंगूर उग रहे हैं और वो बाहर जाके अंगूर खरीद रहा है, ऐसा नहीं होता है। He will be eating from those grapes which he has grown, and that is what God is saying. अगर हम लेविटिकस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत का जो बी पोर्शन पढ़ते हैं तो वह लिखा है, rest of the poor belongs to the priest, just as in the case of grain offering. अगर हम डीपली इस चीज को पढ़ें, पूरा का पूरा पहला चैप्टर से लेकर 7वें चैप्टर तक सारी ऑफरिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें लेविटिकस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी जो 16 और 17 है, the priest shall eat the rest of it and it shall be made into, यानी जो पोषण मेरा खुदावंद का पोषण है उसमें से उसने ऐसा पार्ट जो कि खाने कंज्यूम करने के लिए अच्छा नहीं है वो तो खुद ले लिया है, और अपने बच्चों के लिए, अपने कमीशन एजेंट्स के लिए उसने बेस्ट ऑफ पोषण अपनी तरफ से दे दिया है, ताकि लोगों की वो सच्चे दिल से अगुवाई करें। The Lord, let me read it to you. The Lord has given it to the priests as their part of the food offering. It is very holy, like the sin offering. He says, खुदावंद ने एक और ऑर्डर भी दिया है कि अगर हम नई व्यवस्था की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 98वीं आयत के बी पार्ट को पढ़ते हैं, anyone else who touches a food offering will be harmed by the power of its holiness. यानी मतलब खुदावंद ने कहा 10वां अंश मेरा है और मैं एक अच्छे बाप के नाते अपने लिए मैंने वो पोर्शंस ले लिए जो कि कंज्यूमेशन के लिए अच्छे नहीं थे, जो कंज्यूम करने अच्छे नहीं थे, और मैंने जो रेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्शंस थे वो मैंने अपने कमीशन एजेंट्स को दे दिए हैं। खुदावंद हम सबको बताना चाहता है, हमने अगर बाइबल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो हमको पढ़ना जरूरी है। We must go deep into the word of God, क्योंकि वहां वो क्लियरली कह रहा है कि अगर मेरे पादरियों की जगह कोई और उस 10वें अंश में से खाने की कोशिश करता है तो ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा हार्मफुल इफेक्ट उसके ऊपर लाएगा, क्योंकि he will be harmed by the power of its holiness। यानी खुदावंद कह रहा है जिनको मैंने कमीशन किया है उसके लिए मैंने रखा है, और दूसरा अगर उसमें अपनी आंख लगाता है तो उसके लिए he will be harmed
by the power of His holiness. The Lord's word cannot be changed. खुदावंद कहता है आसमान और जमीन टल जाएगा मगर मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो हमें इन चीजों को पढ़ना है क्योंकि it is the Lord who commissions His people. अगर हम लेविटिकस की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें तो वहाँ यूं फिर लिखा है बी पार्ट में the meat belongs to the priest who offers the sacrifice. The skin of an animal offered as burnt offering belongs to the priest who offers the sacrifice. Every grain offering that has been baked in the oven or prepared in a pan or on a girdle belongs to the priest who has offered it to God. Very clearly, the Bible says, the Lord is saying, I have commissioned my priests and I have out of my own portion, मैंने अपने 10वें अंश में से उनको सारा कंज्यूमेबल पार्ट उनको दे दिया है और मैंने खुद वो पार्ट्स ले लिए जैसे ब्लड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, the blood, the kidney, the parts of the liver and the fats on the internal organs. ये सब खुदावंद ने अपने लिए ले लिए। अगर हम एक और रेफरेंस देखें लेविटिकस की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 28 से आगे हम पढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि priest shall bring the fats of the animal with its breast and present it as a special gift to the Lord. The priest shall burn the fat on the altar, but the breast shall belong to the priest. The right hind leg of the animal shall be given as a special contribution to the priest who offers the blood and the fat of the fellowship offering. There are 101 references जहाँ खुदावंद अपने लोगों को बता रहे हैं अपने वचन के द्वारा और यीशु ने कहा आसमान जमीन टल जाएगा मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा. So God is commissioning them and also providing for them. कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं इसलिए इनकी सारी जरूरत को मैं पूरा करूंगा. So it is the Lord who is bringing all these blessings to them. और उसने क्लियरली कह दिया है कि अगर हम छठी आयत के 18वीं आयत को पढ़ें छठे चैप्टर की 18वीं आयत को कि anybody else who wants to eat from this 1/10 which belongs to me will be harmed by the power of his holiness. So हम खुदावंद के कमीशनिंग को हम यहाँ देख सकते हैं how he commissions and takes care of his priests. खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि learn from the word of God. परमेश्वर से उसके वचन को सीख लें तब हम while we are yet speaking अभी हम मांग ही रहे होंगे खुदावंद हमारी सुन लेगा. जब हम परमेश्वर की कमीशनिंग की बात करते हैं कि खुदावंद ने नियुक्ति की है और खुदावंद ने जब नियुक्ति की है तो खुदावंद ने उनकी जरूरतों के लिए भी पूरा प्लानिंग बनाई है और वो प्लानिंग हम लेविटिकस की पुस्तक में देखते हैं, वो प्लानिंग हम कुरिन्थियंस में देखते हैं, वो प्लानिंग हम थ्रू आउट द बाइबल देखते हैं. कई बार हम उसे पढ़ते नहीं हैं अच्छी तरह से. मगर आज का हमारा थीम जो लेक्शनरी का हमारा थीम है वही ऐसा है कि वो परमेश्वर उन्हें नियुक्त कर रहा है तो नियुक्त कर रहा है तो वो ये उनके लिए जरूरत को पूरी भी कर रहा है. यानी मतलब ऐसा कोई भी स्कूल नहीं जो कि अपने टीचरों को बुलाया कि आप पढ़ाइए तो मगर मैं आपको पैसे कुछ नहीं देगा. यानी अगर एक स्कूल अपने टीचरों को बुलाता है तो वो उनको पैसे नहीं देता है. एक सरकार अपने सर्वेंट्स को बुलाती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तो वो उन्हें समय से पैसा भी देती है क्योंकि उसने उनको नियुक्त किया है. उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया है कि वो भेड़ों की अगुवाई करें. तो इसलिए खुदावंद ने खुद कहा कि जब तुम अपना 10वां अंश मेरे पास लाओगे मैं तुम्हें बहुत आयत की बरकत दूंगा. और उस 10वें अंश में से भी खुदावंद ने वो पोर्शंस अपने लिए ले लिए जो कि नॉन कंज्यूमेबल थे. यानी मतलब कि खून कोई नहीं खाता, अलाउड भी नहीं है, फैट्स खानी आजकल अच्छी नहीं है, इंटरनल ऑर्गन्स ये सब खुदावंद ने कहा कि इनको ऑफर कर दो और जो बचा हुआ फूड है वो किसको दे दो, वो मेरे प्रीस्ट का होगा क्योंकि आई हैव कमीशन्ड देम, मैंने उन्हें नियुक्त किया है. अगर हम
पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय जो कि हमारे सामने आज रीडिंग पढ़ी गई, उसकी 9वीं आयत से पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल के मुंह ना मानना। यानी जब परमेश्वर बैलों तक की चिंता कर रहा है, वचन में उसने लिख दिया कि जब बैल कौन पे या गेहूं पे चल रहा है, पहले बैल चलते थे, तो जब वो चलते थे तो उनके चलने से दाने बाहर निकल के आते थे। आजकल क्या है कि लोग जो है गांवों में या पहाड़ों में जब गेहूं उगाते हैं तो वो उनको सड़क पे डाल देते हैं ताकि गाड़ी के पहिए से वो दाव दिखे जाए। तो जहां से गाड़ी के पहिए उस पे से गुजरते हैं तो उनमें से दाने फूट फूट के बाहर आ जाते हैं और फिर वो उनको बटोर लेते हैं। मगर पहले क्या करते थे कि दानों को निकालने के लिए बैल को चलाया करते थे। तो वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में लिखा है कि जब तुम बैल को चलाओ तो बैल के मुंह के ऊपर कुछ कपड़ा मत बांधना या कोई जाल मत बांधना, ताकि वो जो काम कर रहा है वो भूखा न रह जाए। तो वो कह रहा है क्या व्यवस्था यह नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? क्या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे ये आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल ना काटें? यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल को काटें। जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इनसे अधिक ना होगा? यानी मतलब बरकत देने वाला परमेश्वर है। बरकत और बख्शिश कहां से है? परमेश्वर से है। और जो आपको परमेश्वर के पथ को बता रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, और नियुक्त करने के साथ साथ उनके लिए प्रोविजन भी किया है। और उसने वो प्रोविजन कहां से किया है? लोगों से कहा गया है कि तुम अपना 10वां अंश लाना और मैं उस 10वें अंश को बहुत से आशीषित करूंगा। और उस 10वें अंश में से जो नियुक्त किए हुए कमीशन एजेंट्स हैं, यानी जो कमीशन सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट हैं, जो उसके चुने हुए दास और दासी हैं, उनके लिए उसने कहा है, खुदावंद मुझे और आपको प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम भी इस बात को समझें। यहां अगर हम 13वीं आयत को पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार सुनाने से हो। यानी इस बात को परमेश्वर अपने लोगों को बहुत पूरी तरह क्लियर कर रहे हैं, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट में देख लें चाहे न्यू टेस्टमेंट में देख लें, कि द लॉर्ड हैज कमीशन्ड हिज पीपल एंड ही वांट्स देम टू सर्व। खुदावंद कहता है तुम दिल से मेरी भेड़ों की सेवा करो, और मैंने तुम्हें अपने पोषण में से दे दिया है, और अगर कोई और उसमें से खाएगा तो उसमें वो कर्ज बनेगी, मगर तुम अगर उसमें से लोगे तो प्रभु उस पर तुम्हारे को आशीष देगा, और उन लोगों को बहुतायत की आशीष देगा जो अपने स्टोर में से देते हैं। कई बार हम चर्च बिल्डिंग के लिए तो देना चाहते हैं, मगर हम चर्च जो रियल में इक्लीसिया है उसकी बिल्डिंग बनाने वालों के लिए देना इतना सोचते नहीं है। मगर जबकि वचन बिल्कुल क्लियर कहता है इन राइट क्रिस्टल क्लियर टर्म्स कि जो रियल इक्लीसिया यानी लोगों को बना रहे हैं, जो परमेश्वर के मंदिर को दिलों में स्थापित कर रहे हैं वचन के द्वारा, प्रीचिंग के द्वारा, उनकी जरूरतों को पूरा करना कलीसिया की फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी है। दिस इज द थीम ऑफ आवर वर्शिप दिस मॉर्निंग। प्रभु हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि हम उसकी व्यवस्था को समझ सकें, उसके मुताबिक चलें, ताकि जब हम प्रभु के पास, उसने कहा तुम मेरे पास आके देखो मैं तुम्हारे को भर दूंगा, आई विल फिल यू विद प्लेंटी, आई विल ब्लेस यू विद प्लेंटी।
खुदावंद के लोग जब उसकी बात को मानते हैं, क्योंकि ये किसी इंसान का वचन नहीं है, चाहे हम ओल्ड टेस्टमेंट में उठा के देख लें, चाहे न्यू टेस्टमेंट में उठा के देख लें, हर जगह पे वही वचन है जो खुदावंद का वचन है, वो टल नहीं सकता। हम इस समय गॉस्पेल रीडिंग जो हमारे सामने पढ़ी गई उसके अंदर देखें, मत्ती की उस पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से आगे हम देखें कि वहां क्या लिखा है। अंत में हम देखते हैं यीशु का वचन। यीशु का वचन सबसे सच्चा और कायम है। आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये पादरियों के लिए है, ये चुने हुए कमीशन नियुक्त किए हुए दासों के लिए है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है, आए पास्टर लोगों, आए चुने हुए दासों, तुम्हें जो ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यानी जब आप परमेश्वर के दास को अपने बीच में ग्रहण करते हैं तो आप, यीशु का वचन है कि आप यीशु को ग्रहण करते हैं, और जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो यीशु के भेजने वाले यानी गॉड द फादर को ग्रहण करते हैं। और जहां 2 या 3 खुदावंद के नाम से एकत्रित होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं, परमेश्वर की आत्मा वहां उनके बीच में होती है। तो परमेश्वर की आत्मा भी होती है, गॉड द ट्राइयून गॉड, God the Father, God the Son and the God the Holy Spirit is there। जब आप अपने पादरी को इज्जत देते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर को यानी यीशु को, उसके भेजने वाले यानी पिता को और पवित्र आत्मा को आप इज्जत देते हैं। मगर जब आप पादरी की बेइज्जती कर रहे होते हैं तो खुदावंद कहता है जो लोग, यानी अगर हम इसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, वहां क्या लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर और उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहनीय होगी। यानी मतलब जो लोग अपने पादरियों का तिरस्कार करते हैं, लीडर्स को बेइज्जत करते हैं, उनकी दशा, खुदावंद यीशु मसीह के वचन है, वह यीशु का वचन लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएगा मगर उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो जो परमेश्वर के दासों को ग्रहण नहीं करते, उनकी बात को नहीं सुनते, उनकी दशा, उनके घर से निकलते समय अपने पांव की धूल भी झाड़ दो, हमें तुम्हारी धूल भी नहीं चाहिए। एंड उनकी दशा जो है वो सदोम और अमोरा से भी बदतर होगी। यानी सदोम और अमोरा में क्या हो गया था, सल्फर गिर गया था, आग आ गई थी, मर गए थे। और लूत की पत्नी जिसने पीछे मुड़ के देखा वो तक नमक का खंभा में गिर गई। यानी परमेश्वर यीशु का वचन सच्चा और कायम है, जो उसने कह दिया हाँ और आमीन है। आसमान जमीन टल जाएगा मगर उसका वचन नहीं टलेगा कि उन लोगों की दशा सदोम और अमोरा के लोगों से भी बदतर होगी। यानी परमेश्वर हमें क्लियर कमीशन दे रहा है और कमीशन के साथ वो बरकत भी दे रहा है। जो तुम्हें ग्रहण करता है उनके साथ क्या होगा, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी जन को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटे से छोटों में को मेरा चेला जानकर, मेरा कमीशन एजेंट जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि किसी रीति से अपना प्रतिफल ना होएगा। यानी मतलब जो कमीशन एजेंट्स की इज्जत करते हैं वो बरकत श्योरली पाएंगे, वो खो ही नहीं सकते अपनी बरकतें। तो परमेश्वर कह रहा है आपको परमेश्वर के वचन को ना सिर्फ सुनना है, उसके मुताबिक चलना है, तब आपकी बरकत आपके साथ होगी। यीशु ने कहा तुम किसी बात की चिंता ना करना, ना तो अपने पटकों में सोना लेना, पटुकों में, यीशु ने कहा तुम किसी बात की चिंता ना करना, ना तो अपने पटुकों में सोना लेना, ना रूपा लेना, ना तांबा लेना, माल के लिए किसी चीज की चिंता ना करना, क्योंकि मजदूर को
उसका वचन मिलना चाहिए। यानी मतलब he is not saying मिल जाएगा, तो he must get, यानी उसको मिलना चाहिए। यानी खुदावंद कह रहा है I have commissioned them and I will provide for them। खुदावंद मुझे और आपको आज अपने वचन से कह रहा है learn to respect the commission agents of God। खुदावंद कहता है और while you are yet speaking, अभी तुम मुझसे मांग रहे होगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। तो आइए हम अपने स्वरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं, आइए हम प्रार्थना करें। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बहुत प्यार की बरकत दी है, और आज के इस अच्छे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जो कि हमें प्रेरित करता है। और खुदावंद तूने अपने लोगों को चुना, तूने जोशुआ को चुना, तूने मूसा को चुना, तूने खुदावंद अपने सारे शेपर्ड्स को चुना और उनको नियुक्त किया, और उनकी नियुक्ति के साथ साथ उनको अपने पोषण में से खाने को दिया, पहनने को दिया, और कहा किसी चीज की चिंता ना करना, क्योंकि जो लोग तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम्हारी सुधि लेंगे, उनकी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। मैं उनको उनके 10वें अंश को देखकर उनको बहुत तारीफ की आशीष दूंगा। खुदावंद तेरी आशीषें हम सारी कलीसिया पर चाहते हैं, और हम तेरी भेड़ों की अच्छी केयर करना चाहते हैं, ताकि खुदावंद हर चीज में तेरा नाम मुबारक हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 21 जून को हमारे चर्च की पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जब आप हदिये का गाना जो कि अब हमारे सामने गाया जाएगा, आप उसको गाते हैं, तो उस समय आप सब लोग अपने घरों पे अपने हदिये को कलेक्ट करें, आप चर्च के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और अगर आप चेक देना चाहते हैं तो आप क्रॉस चेक मिस्टर सलीम को चर्च पर दे सकते हैं, एंड दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर। आप अपने जो सेल्फ डिनाइल बॉक्सेस हैं उनको भी आप खोलें, और उनके जो अमाउंट्स हैं उनको भी आप ट्रांसफर कर दें, एंड प्लीज डू इंटीमेट अस। आप अपने जो पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके साथ साथ उसका अमाउंट जो ट्रांसफर कर रहे हैं ये भी हमें सूचित करें स्पेसिफिकली कि ये कौन ट्रांसफर कर रहा है। कई बार अमाउंट आ जाता है और हमें ये नहीं पता होता किसके नाम की रसीद करनी है या किसने ट्रांसफर किया है। आइए हम सब अपने घरों पर खड़े होकर गाएंगे। I'm satisfied with Jesus. He has done so much for me. He has suffered to redeem me. He has died to set me free. I am satisfied. I am satisfied.
आइए हम इस चंदे के लिए दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए मेरे बाप। तमाम आसमानी बरकतें खुदावन सिर्फ और सिर्फ तेरी ही तरफ से हमें मिलती हैं मेरे बाप, और तू हमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें देता है मेरे प्रभु। उन तमाम तेरी बरकतों में से मेरे प्रभु जी हम जो तेरे सामने ये भेंट करते हैं मेरे प्रभु जी, ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, और तेरे ही दिए में से मेरे प्रभु जी हम ये तेरे को अर्पण करते हैं। जो कुछ भी दिया है मेरे प्रभु जी आपके काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाए मेरे प्रभु जी, और इस पर बहुतायत से आशीष दे, और जिन्होंने दिया है मेरे प्रभु जी उन्हें भी बहुतायत से आशीष दे मेरे प्रभु, और होने दे मेरे प्रभु जी कि जिन हाथों में जाए, जिस भी खजाने में जाए मेरे प्रभु जी, वो केवल और केवल तेरे ही भले कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। इस दुआ को सुन और कबूल कर मांगता हूँ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Under God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you and give you His grace to follow Him. Amen. And the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.